हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए इंग्लिश, जिसमें आज सॉल्व करेंगे इंग्लिश प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। द क्वेश्चन फर्स्ट फॉर टुडे इज the question for error detection, in which we are provided with a sentence and we have to find out the part which has error. The question that reads is, it is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out in a decade. So there are four parts. The first part is it is widely believed. The second part is that the village which is situated on the eastern coast of India wiped out in a decade, no error. Now let's check all the parts one by one. It is widely believed. It is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out in a decade. So हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये रहा है, it is widely believed. बिलीव बिल्कुल भी नहीं होगा, इट इज़ वाइडली बिलीव्ड होगा। यहाँ पे बिलीव का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है, सेकंड फॉर्म इट इज़ वाइडली बिलीव्ड होगा। बाकी सारे पार्ट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द, ये बिल्कुल सही है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट इन अ डिकेड, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। सो द पार्ट विद द एरर इज one, it is widely believed, which should be it is widely believed. Now let's moving to the second question. The second question that we have today is, yesterday I met an old friend when I am going to the market. The four parts are yesterday I met, कल मैं मिला, an old friend, एक पुराने दोस्त को, when I am going, जब मैं बाजार जा रहा हूँ, to make the market, to the market. Yesterday I met, कल मैं मिला, an old friend, एक पुराने दोस्त को, जब मैं बाजार जा रहा हूँ। बस यहीं पे एरर है। Yesterday I met, जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, यानी कि मैं कल किसी को मिल चुका हूँ, तो हम यहाँ बोलेंगे कि जब कल मैं बाजार जा रहा था, ना कि जब कल मैं बाजार जा रहा हूँ। When I am की जगह पे यहाँ पे was होगा। हमारे इस वाले पार्ट में एरर है, when I am going, ये गलत है, when I was going। So now moving to the third question, the criminal was sentenced to the death and was hung for his crime. So let's check out all the parts one by one. Third question that we have for today is, the criminal was sentenced to death and was hung for his crime. So let's check out all the parts one by one. The first part, that is the criminal was, is correct. The second part is sentenced to the, is also correct. The third part is death and was, it is also correct. The fourth part is hung for his crime. This part has error. There is no word like hung, there should be hunged. यहाँ सेंटेंस में hung की जगह hunged होना चाहिए, क्योंकि hung का past form hunged होता है, ना कि hung. So now moving towards the next question for today is, FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror funding in the country. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म के खिलाफ, वो पाकिस्तान को बोल रहा है कि वो अपनी टेरर फंडिंग जो है वो स्टॉप करे, यानी कि आतंकवाद के लिए पैसा देना बंद करे अक्टूबर 2019 तक। तो चलिए देखते हैं, एक एक पार्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। FATF स्ट्रांगली अर्ज करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो FATF स्ट्रांगली अर्ज, ये बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट पार्ट इज पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। थर्ड पार्ट इज बाय अक्टूबर 2019 टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। टेरर फंडिंग इन द कंट्री, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, नो एरर। Now moving towards the next question, Elon Musk is determined to be success in whatever field he chooses.
द पार्ट्स आर एलन मस्क इज डिटरमाइंड। एलन मस्क इज डिटरमाइंड यानी कि एलन मस्क जो है वो दृढ़ संकल्पित है, उन्होंने कुछ निर्णय लिया है जिस पे वो अड़े हुए हैं। टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड, जिस भी क्षेत्र को वो चुनते हैं उसमें वो, सेंटेंस के कहने का मतलब है कि एलन मस्क जिस भी फील्ड को चुनते हैं उसमें वो सक्सेस के लिए यानी कि सफलता के लिए बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। तो यहाँ पे टू बी सक्सेस नहीं होगा, सफलता का, सफल होने को हम बोलते हैं सक्सेसफुल, यहाँ पे FUL सक्सेसफुल होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस वुड बी एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर फील्ड ही चूजेज, यानी कि एलन मस्क जिस भी फील्ड को चुनते हैं वो उसमें बिल्कुल सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली come from Asia and Africa where demographics are still favorable for high income growth. So question 6 is saying कि न्यू परचेजिंग पावर जो है वो एशिया और अफ्रीका से जो आ रही है वो काफ़ी फेवरेबल है हाई इनकम ग्रोथ के लिए। सो लेट्स चेक आउट ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। द सेकेंड पार्ट इज कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर, इस पार्ट में भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। फॉर हाई इनकम ग्रोथ, ये पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा नो एरर 5। Now moving towards the next question that we have is, so the seventh question that we have for today is, not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked. So let's check out all the parts. Not only the, इसमें कोई grammatical mistake नहीं है, students but also, इस part में भी कोई grammatical mistake नहीं है। The principal were, जब हम किसी सेंटेंस को नॉट ओनली बट अल्सो से कनेक्ट करते हैं तो ये जो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब आया है ये हमारे प्रिंसिपल के लिए आया है। प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल सिंगुलर है, ये अकेला है, स्टूडेंट्स इसमें कंबाइंड नहीं है। तो ये प्रिंसिपल जो आया है, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि वॉज होना चाहिए। वॉज लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड, इस पार्ट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी कि हमारे थर्ड पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है जहाँ वर्ब की जगह वॉज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव इज ऑफ फिलर। वी हैव टू फिल अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमें फिल करना है। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट, ये पास्ट के बाद हमारा ब्लैंक है जो उसमें नहीं दिख रहा है, पर ये पास्ट के बाद ब्लैंक है। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट डैश द फायर प्लेस। कहने का मतलब है कि एक बिल्डिंग है जो काफ़ी पुरानी है, उस बिल्डिंग की वो कितनी पुरानी है उसके पास्ट को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ बस एक चीज़ बची है, फायर प्लेस। तो बस एक चीज़ के लिए कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं सारे वर्ड्स की क्या मीनिंग है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल होना। थर्ड वर्ड है बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है थे या कोई चीज़ जो पास्ट में हमारी थी। बार्ड का मतलब होता है वर्जित होना, किसी चीज़ पर रोक लगना या मना होना। सो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा एक्सेप्ट। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट एक्सेप्ट द फायर प्लेस, यानी कि उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये बताने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक पुरानी फायर प्लेस के। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो अ फिलर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two circus elephants that performed together when crossing paths 23 years later. यहाँ पे together के बाद हमारा blank है। So now let's see what the words we are provided with. Happy, happy का मतलब होता है खुश। Believe, believe का मतलब होता है विश्वास करना। Angered, angered का मतलब होता है गुस्सा होना या गुस्सा दिलाना। फोर्थ ऑप्शन इज रीजॉइस्ड, रीजॉइस्ड का मतलब होता है खुश होना। किसी कारण से जब हम खुश होते हैं, किसी से मिलते हैं, खुश होते हैं तो रीजॉइस करते हैं। ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा रीजॉइस्ड, क्योंकि द टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म्ड टुगेदर, सर्कस के जो दो हाथी थे जो पहले साथ में परफॉर्म किया करते थे
वे जब मिले 23 साल बाद जब वे मिले, क्रॉसिंग पैथ्स का मतलब होता है मिलना। एक रास्ते पर जब हम चलते हैं और मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग पाथ्स। जब वो 23 साल के बाद एक दूसरे से मिले तो वो काफ़ी खुश हुए। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड हैप्पी, हैप्पी का भी मतलब खुश होना होता है, पर हैप्पी नहीं होगा, रिजॉइस्ड होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो रिजॉइस होते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द क्वेश्चन 10th इज द लॉ फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव एंड रीसो मल्टीप्लाई सीड्स but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. The law के बाद यहाँ पे हमारा blank है. The law dash farmers not only to save and resow multiply seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. सेंटेंस के कहने का मतलब है जो कानून है उसने डैश किया किसानों को ताकि वो केवल बचा ही ना सके, सीड्स को दोबारा बेच भी सके, चाहे उस सीड की ओरिजिनल सोर्स यानी वो सीड कहाँ से आया है ये मैटर नहीं करता है। फार्मर्स को ये हक है कि वो उसे दोबारा बेच सके। ये जो हक है ये किसने दिया है? कानून ने दिया है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल है? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। कोवर्ड्स, कोवर्ड का मतलब होता है कुछ छुपा हुआ। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू होना। जब भी कोई कानून लागू किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है। थर्ड वर्ड इज एमिट्स। एमिट्स का मतलब होता है उत्सर्जित करना, डिस्चार्ज करना, कुछ फेंकना या निकालना। फोर्थ वर्ड इज परमिट। परमिट का मतलब होता है परमिशन देना। परमिट का मतलब होता है परमिशन देना। हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स है ना वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, रूट वर्ड से निकलते हैं। परमिशन से ही निकला है परमिट या परमिट से ही मिला है परमिशन। द लास्ट वर्ड इज डिजर्ट। डिजर्ट का एक तो मतलब रेगिस्तान होता है, दूसरा मतलब होता है किसी भी इंसान के अच्छे या बुरे गुण, उसकी अच्छी बुरी क्वालिटीज। सो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल वर्ड होगा दैट वुड बी परमिट्स। द लॉ परमिट्स, जो कानून है हमारा उसने किसानों को परमिशन दिया है ताकि केवल वो बचा ना सके बीज को, उसको बेच भी सके। ये मैटर नहीं करता कि वो बीज कहाँ से आए हैं। This is all for this session. Thanking you, and please don't forget to like, share and comment and subscribe to our channel. And if you found this video informative, please do comment. Thank you so much for watching.